Welcome back, dear friends, and good evening, one and all present here in this lecture. Definitely, I hope you all are eagerly watching and very keenly watching today's lecture. So, dear friend, it has been long time. I didn't upload any single video because my health was not going good. I was facing leg injury, so that was the issue. I was not able to teach you, and I was also not able to give you any lecture. But today onwards, we will be covering our syllabus. जो भी हमारा भी syllabus छूट रहा है, then definitely we will cover within time so that we can finish our syllabus within time and we can do revision again of our taught topics जो मैंने आप सभी को पढ़ाए हैं. So dear friends, I was just scrolling comment section yesterday and I came to know that there were one student who just sat there who mentioned there, sir, being an English teacher, you must teach in English because Hindi does not suit on you. Definitely, dear friends, it doesn't suit on me. But let me tell you one thing. For me, your understanding does matter. If I teach very well in Hindi plus Urdu, and you can also combine English, it's a bilingual, trilingual. You can say that. I always teach you in the different language so that you can easily get my point, and definitely the purpose of my teaching can be fulfilled if you get my points very accurately or very precisely. So dear friends, यहाँ पे दूसरी लैंग्वेजेस या इंग्लिश के अंदर पढ़ाने का ये मकसद नहीं है कि मैं अपने स्किल्स को शो करूँ. डियर फ्रेंड, आई ऑलवेज टीच यू इन ए ब्रिलियंट वे ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए. और वट एवर यू जस्ट स्टडी एंड वट एवर यू लर्न, इट डेफिनेटली गिव यू द प्रोडक्टिव टाइम एंड द प्रोडक्टिव लर्निंग आल्सो, ताकि आप अच्छे तरीके से अपने एग्जाम के अंदर स्कोर पर कर पाओ. So dear friend, English के अंदर भी I could teach you in English and I can teach you in English, and definitely if you want then definitely I shall be uploading every lecture on English so that you definitely get my points. I think so, but there are many students who does not understand. There are many students, they don't understand the English very well, so that they can have a little bit confusion when I will be teaching you in English. So keeping that thing in my mind, I always try to just use the multi-language so that you can easily understand. मैं हमेशा उर्दू, हिंदी और यहाँ पे इंग्लिश का भी यूज़ करता हूँ so that you can easily get my points. So dear friend, in this today's lecture we will be covering about past continuous tense. Before this lecture we had covered 2 and 3 marathons in which we have covered clause, then passive voice, narration, and today in this lecture we will be covering past continuous tense. It's 6 lecture of tense so that you can easily finish today's past continuous tense, and then definitely we can proceed ahead with the new lecture with the new tense. So dear friends, without delay let's get started on today's lecture. तो यहाँ पे आज आपको थोड़ा सा चेंजिंग भी मिलेगी कि यहाँ पे आज मैंने आप सभी के लिए हैंड रिटन नोट्स लाए हैं डियर फ्रेंड, ताकि आई होप कि आप सभी को ये पढ़ना भी आ रहा होगा और डेफिनेटली इट विल डेफिनेटली गिव यू द बेनिफिट कि आपको मैं ये सेंड करके आप इनके प्रिंट भी निकाल सकते हो ताकि आप इजीली इनको एक्सेस कर पाओ और इजीली आपके लिए अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए आपको मिल जाएं. सो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है. डियर फ्रेंड, अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस को अच्छे तरीके से आपको समझना है सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि आप किस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं. बहुत ही आसान है, आप इसको आराम से भी समझ सकते हैं किस तरीके से, वो भी मैं आपको एक इजीली वे में बताने वाला हूँ. इट्स वेरी सिंपल ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाओ. सो डियर फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है. तो अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस समझाने की कोशिश करूँ तो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ा था. तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आपने ये पढ़ा था कि किसी भी सब्जेक्ट के मुताबिक हम इज एम आर जो एक हेल्पिंग वर्ब या मॉडल एक्सिलरीज की तरह ही वो काम करता है, क्योंकि इज एम आर यहाँ पे मॉडल तो नहीं है, लेकिन ये जो एक्सिलरीज वर्ब होती हैं ये 2 टाइप्स की होती हैं. तो यहाँ पे एक एक्सिलरी वर्ब होती है और मॉडल एक्सिलरीज होती हैं. तो उसके अंदर कैन कुड ये जो आता है ये मॉडल एक्सिलरीज के अंदर आते हैं. इसी तरीके से इज एम आर जो टू बी से निकले हैं, ये इज एम आर इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है किसकी, टू बी की, और उसके बाद जो टू बी की सेकेंड फॉर्म होती है वो वॉज वर होती है. तो जब यहाँ पे टू बी की सेकेंड फॉर्म वॉज वर है तो मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर पढ़ाया था कि जब जब आप बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पास्ट की बात करते हैं, तो पास्ट के लिए आप हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म जिसको हम एक्शन भी कहते हैं, यानी किसी वर्ब की, किसी क्रिया की, किसी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, चाहे वो फिर कंटिन्यूस टेंस हो. यानी पास्ट की कोई भी बात क्यों ना हो, मैं यहाँ पे प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, पास्ट की बात कर रहा हूँ. आपको पता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है. प्रेजेंट के बारे में हम सभी ने अच्छे तरीके से पढ़ा, अब हम पास्ट के ऊपर अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और विद इन सम डेज हम अपने फ्यूचर को भी अच्छे तरीके से फिनिश करेंगे ताकि
फ्यूचर होता नहीं है, फ्यूचर बनाया जाता है। किस तरीके से बनाया जाता है उस गुरु मंत्र को भी अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे, एंड देन डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एंड डेफिनेटली यू विल स्कोर ग्रेट इन योर competitive examination. So dear friend, at the end of this video I have brought one exercise for you where you will have to give answers and definitely you will have to check your depth of knowledge कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा। तो यहाँ पे इस तरीके से पास्ट की जब भी बात करें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और इसी तरीके से टू बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब का हमने यूज़ किया था, और कंटिन्यूस जब भी कोई काम चलता है डियर फ्रेंड उसको बताने के लिए आप हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का ही आप यूज़ करते हैं। अगर बात करें स्पेशली बात करें कि किस तरीके से पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ होता है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हमेशा उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है जो एक्शन एक पार्टिकुलर टाइम ऑफ पास्ट के अंदर हो रही थी। जैसे अगर मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं तो कल भी इसका मतलब मैंने पढ़ाया था। अगर कल नहीं पढ़ाया था तो सपोज कर लो कि कल भी मैंने आपको इसी टाइम पे लेक्चर प्रोवाइड करी थी, यानी 5 ही 6 या 7 बजे के आसपास मैंने आपको लेक्चर प्रोवाइड करी थी, और आज भी हम उसी तरीके से पढ़ रहे हैं और कल भी हम आने वाले कल में भी पढ़ेंगे। इसका मतलब ये हमारी रूटीन बन गई। तो रूटीन से ये साबित हुआ कि कल भी आप इसी टाइम पढ़ रहे थे। आप क्या बोल रहे थे, सर मैं कल इसी टाइम क्लास अटेंड कर रहा था, आई वॉज अटेंडिंग क्लास यस्टरडे। तो इसका मतलब कल इसी टाइम कोई काम लगातार चल रहा था। इन टाइम इन पास्ट कोई काम पास्ट के अंदर अगर लगातार चल रहा था उसको बताने के लिए आप यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं डियर फ्रेंड। उसके बाद स्पेशली विद द पास्ट टाइम, मैं आपको पहले ही कह गया हूं कि जब भी पास्ट की कभी भी किसी ने बात करी हो, आपने बात करी हो, किसी और बंदे ने बात करी हो, सुमित सर ने बात करी हो, अंजुम सर ने बात करी हो, किसी मैम ने बात करी हो, जिसने भी बात करी हो पास्ट की, तो आपको बस एक ही माइंड में रखना है, एक बात याद रखनी, एक आइडिया रखना है कि जब जब पास्ट की बात होती है वहां पे हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगती है। तो यहाँ पे जो मॉडल एक्सिलरीज होते हैं या जो एक्सिलरीज वर्ब हम इनको कहते हैं इज एम आर को, तो इसकी सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब होती है। उसके बाद आप वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज करोगे और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज करोगे। लेकिन कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स भी होते हैं जिनको आपको अच्छी तरीके से जानना भी है। अब कैसे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे देन आ गया, दोज डेज आ गए वो दिन, दैट टाइम आ गया वो समय या वो टाइम, व्हेन, बिफोर और आफ्टर। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो पास्ट टाइम को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, पास्ट टाइम के बारे में हमें बताते हैं। उसके बाद डिफरेंट अगर रूल की बात करें तो रूल आप सभी को पता है कि सब्जेक्ट के मुताबिक आप वॉज का यूज करते हैं और सब्जेक्ट के मुताबिक आप वर्ब का यूज करते हैं। अब इसकी कंफ्यूजन भी आपको मैं दूर करूंगा, लेकिन पहले आप रूल को समझें और उसके बाद आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगा के आप उस सेंटेंस को कंप्लीट करते हो। अब एक बात यहां पे और जानने को मिलती है कि जब भी आप वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे वो कहीं ना कहीं वहां पे कंटिन्यूअस एक्शन को परफॉर्म होने के रिलेशन को शो करेगा, बताएगा। तो इसीलिए आपको ये बात भी अच्छी तरीके से समझनी। और उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात करें और उसके बाद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, इसके ऊपर भी मैंने एग्जांपल्स भी लाए और डिफरेंट रूल भी लाए हैं ताकि आप एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको अच्छे तरीके से समझ पाओ। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप सभी के लिए लेक्चर्स जो आपको प्रोवाइड की जा रही है उसी तरीके से भी हैं। सो डियर फ्रेंड, अब यहाँ पे सबसे बड़ी खेल ये है कि सर जो ये वॉज और वर्ब का यूज होता है किस तरीके से एक सेंटेंस के अंदर होता है, तो सबसे पहले हम उसको झंझट को खत्म कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे एक बात याद रखनी, जिस तरीके से आपने यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर पढ़ा था कि जितनी भी सिंगुलर वर्ब होती है उनके साथ आप इज का यूज करते हो और प्लूरल के साथ आप किसका यूज करते हो, आर का यूज करते हो। और आई एक ऐसा होता था जिसके साथ आप एम का यूज करते हो, क्योंकि दुनिया में सबसे अच्छे काम और सबसे बेटर जो वर्क होता वो कौन करता, आई करता। इसीलिए आई यूनिक है और आप सभी भी यूनिक है एंड डेफिनेटली यू कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन विद हैविंग ग्रेट मार्क्स। इसीलिए आप बाय लीप्स एंड बाउंड्स, देखो बाय लीप्स एंड बाउंड का मतलब होता है दिन दुगनी रात चुगनी आपको मेहनत करनी है एंड यू विल हैव टू प्रूव योरसेल्फ डियर फ्रेंड। इसी तरीके से हम आज के लेक्चर को और आगे कंटिन्यू करेंगे और हम बात कर रहे थे यहाँ पे सब्जेक्ट की बात कर रहे थे कि किस सब्जेक्ट के साथ हम वॉज का यूज करेंगे और किन सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब का यूज करेंगे। तो जब बात होती है आई की बात हो, ही की बात हो, शी की बात हो, इट की बात हो, किसी के नेम की बात हो या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो, अगर मैं अपनी एग्जांपल यहाँ पे लिखूं, मैं बोलूंगा राकेश, तो राकेश कल पढ़ा रहा था, लेकिन इसका मतलब कल कोई काम इस टाइम लगातार चल रहा था, पास्ट के अंदर कोई काम कंटिन्यूअस चल रहा था, तो आप क्या बोलोगे, राकेश वाज टीचिंग यस्टरडे। तो इस तरीके से यहाँ पे राकेश क्या नेम है। इसी तरीके से आप सीता लिख सकते हो, गीता लिख सकते हो, उसके बाद और टोबिया और भी कुछ नाम लिख सकते हो आप यहाँ पे। इसी तरीके से किसी थर्ड पर्सन का लिख सकते हो। तो जब भी यहाँ पे बात हो, इट की बात हो, शी, ही, आई, तो इट यहाँ पे देखो नॉन लिविंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे उनके साथ आप वॉज का यूज़ करें।
लेकिन अगर दूसरी साइड बात करें, आप वी की बात करें, यू की बात करें, दे की बात करें, या किसी प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें, यानी प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा, यानी एक पर्सन नहीं, दो पर्सन या दो से ज़्यादा को हम प्लूरल कहते हैं। तो जब भी कोई सेंटेंस यहाँ पे प्लूरल से शुरू होता है तो रूल के मुताबिक ये कहा जाता है कि उसके साथ आप किसका यूज़ करते हो, वर का यूज़ करते हो। देखो एक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वॉज और वर मैंने पहले भी बताया, ये सेकेंड फॉर्म होती है इज़मार की। ये कहाँ से निकला है, टू बी से निकला है। इसको भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना, और मैंने पहले लेक्चर के अंदर भी बताया था, तभी इसमें शॉर्ट बता रहा हूं। उसके बाद यहां पे मैंने ये भी बताया कि वर्ब प्लस आईएनजी जब भी कभी किसी सेंटेंस के अंदर आप यूज करते हैं तो वहां पे अगर ये सब्जेक्ट प्लस वॉज वर हो या इज़मार हो तो कहीं ना कहीं वो कंटिन्यूस के काम को परफॉर्म होना बताती है, या कंटिन्यूस एक्शन को परफॉर्म होता है वहां पे। इस तरीके से आप इसका यूज रखना, यानी पता रखना, और इसका यूज का पता भी आप सभी को अच्छे तरीके से अपने माइंड के अंदर रखना है। डियर फ्रेंड, लास्ट और फाइनल मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है या पास्ट क्या होता है। यानी पास्ट कंटिन्यूस का मतलब यह है कि कोई पास्ट के अंदर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा था और वो कंटिन्यूसली परफॉर्म हो रहा था, उससे हम क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस का मतलब लगातार, और टेंस का मतलब यही होता है कि किस टाइम के अंदर कैसी सेंस हमें मिलती है, उसे हम टेंस कहते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस को समझते हैं। डियर फ्रेंड, अब एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमारी कंफ्यूजन और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अब एग्जाम्पल यहाँ पे, ही वॉज गोइंग टू कॉलेज। देखो यहाँ पे ही, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही वॉज गोइंग टू कॉलेज, यानी वो लड़का कहाँ जा रहा था, कॉलेज जा रहा था। लेकिन आज लॉकडाउन लग गया, अब कॉलेज भी ठप है, यानी कॉलेज जो है वो बंद है। ही वॉज गोइंग टू कॉलेज। इस तरीके से आपको समझना है, एंड डेफिनेटली यू ऑल विल गेट गुड थिंग्स टू लर्न। डेफिनेटली डियर फ्रेंड्स, स्टे विद दिस लेक्चर। आप इस लेक्चर को पूरा देखें, लास्ट पे आपके पास एक्सरसाइज भी है, उसको भी आप अच्छे तरीके से अटेंड करें, ताकि मुझे भी ये लगे और आप सभी को भी अपने आप सेटिस्फाई कर पाएं कि आज के जो लेक्चर हमने देखी, इस लेक्चर के अंदर आज के बाद हमें कोई भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है। कपिल वाज राइटिंग अ लेटर, तो कपिल इज व्हाट हियर, कपिल इज द नेम, तो विच इंडिकेट्स द थर्ड पर्सन सिंगुलर हियर। तो यहाँ पे एज ए थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन यूज हो रहा है, कपिल हो रहा है, जो सब्जेक्ट यूज हो रहा है। इसके साथ आप वॉज का यूज करेंगे, तो उसके बाद राइट के साथ आईएनजी लगाया तो बन गया राइटिंग, कपिल वॉज राइटिंग लेटर। उसके बाद है आई वॉज स्नूप ऑन नेबर्स, आई वॉज स्नूप ऑन नेबर्स। सो डियर फ्रेंड, यहाँ पे आपके लिए देखो, सबसे पहले मैं ये इसको मिटा देता हूँ। एक बार यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक करी, आई वॉज स्नूप ऑन नेबर्स, तो आगे मैंने लिखा है करेक्शन। आप इस सेंटेंस को करेक्ट करें, एक सेकेंड लगाएं। आई होप कि अगर आपने पहले से अच्छे तरीके से लेक्चर को सुना है तो आप डेफिनेटली यू आर एबल टू जस्ट गिव करेक्ट आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल। आप इस एग्जाम्पल के करेक्ट आंसर को लिख सकते हैं। तो मैं ही आपको बता देता हूँ, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी आप यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेला नहीं लगती है, इसके साथ हमेशा आप आईएनजी फॉर्म का यूज करते हो। तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, आई वॉज स्नूपिंग ऑन नेबर्स। तो स्नूप ऑन नेबर्स भी आप में से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यानी लर्नर जो हैं, इनको कन्फ्यूजन होगी कि सर ये स्नूप ऑन नेबर्स आज से पहले सुना नहीं। तो स्नूप ऑन नेबर्स का मतलब होता है पड़ोसियों की ताक झांक करना, कि पड़ोसी कर क्या रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, तो स्नूप ऑन नेबर्स। उसके बाद है इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो ये यहाँ पे एक दूसरा इडियम्स आ जाता है। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है अंधाधुंध बारिश होना, यानी हेवनली रेन, मीन्स इट वाज हेवनली रेनिंग, तो यानी बहुत ही ज़बरदस्त बारिश होना, बहुत ही खतरनाक बारिश होने को कहते हैं कैट्स एंड डॉग्स। सो इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, तो यहाँ पे वॉज यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, वॉज यहाँ पे पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद है दे वर बिडिंग फॉर द मेंशन। बिड फॉर द मेंशन का मतलब होता है हवेली की बोली लगाना। तो वो लोग क्या कर रहे थे, हवेली की बोली लगा रहे थे, यानी हवेली को बेच रहे थे, तो दे वर बिडिंग फॉर द मेंशन। सो डियर फ्रेंड, आई हैव ब्रॉट मेनी न्यू वोकैबुलरी फॉर यू एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प you in your examination point of view also, and it will definitely help you in your speaking terms also, so that you can also be a good orator of English language. So dear friends, now it's time to go ahead with the नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे हम देखते हैं किस तरीके से हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। डिफ एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरीके से आपने देखा था इज के साथ नॉट लगने से इजंट बनता था, उसी तरीके से यहाँ पे वॉज के साथ नॉट लगने से नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आप वॉजेंट भी कह सकते हो, और वर्क के साथ जब नॉट लगता है तो इसको हम वरंट भी कहते हैं। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है,
सब्जेक्ट के साथ हम वॉज वर्ब लगाते हैं और उसके बाद नॉट लगाते हैं। देखो बहुत ही मैक्सिमम में बहुत ही लेस चांसेस होते हैं जहां पे हम नॉट को अकेले यूज़ कर सकते हैं, यानी एक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा हम नॉट का यूज़ करते हैं और जैसे ही नॉट लगता है तो डिफरेंट वहां पे आपको नेगेटिव सेंस मिल जाती है। और जब भी आपको कभी पास्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को बनाना हो तो सब्जेक्ट के साथ वॉज वर्ब तो लगता ही लगता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे आप एक एडिशन करेंगे तो वो एडिशन किसकी होगी, नॉट की होगी। वो एडिशन किसकी होगी, यहाँ पे आपको नॉट का यूज़ करना और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, वी वर नॉट मिल्किंग द काउ। मिल्क द काउ का मतलब होता है गाय से दूध निकालना, यानी गाय से दूध निकालना, तो हम गाय से दूध नहीं निकाल रहे थे। वी वर नॉट मिल्किंग द काउ, इस तरीके से आप बात करने। उसके बाद शी वॉज नॉट स्पेकुलेटिंग ऑन क्रिकेट, तो देखो यहाँ पे शी वॉज नॉट, तो वॉज नॉट यहाँ पे एक नेगेटिव सेंस को दे रहा है, यानी नकार रहा है, मना कर रहा है कि वो शी वॉज नॉट स्पेकुलेटिंग ऑन क्रिकेट। सबसे पहले आप ये मतलब जाने स्पेकुलेट ऑन क्रिकेट क्या मतलब क्या होता है। अगर आपके पास पेन कॉपी है तो डेफिनेटली आप एक बार मीनिंग लिख दें। स्पेकुलेट ऑन क्रिकेट का मतलब होता है क्रिकेट पे सट्टा लगाना, जैसे आजकल आईपीएल के ऊपर आप सट्टा लगा रहे हैं, ड्रीम 11 आप सभी खेल रहे होंगे, तो स्पेकुलेट ऑन क्रिकेट का मतलब होता है क्रिकेट पे सट्टा लगाना। तो वह लड़की भी क्रिकेट पे सट्टा लगा रही थी। शी वॉज नॉट स्पेकुलेटिंग ऑन क्रिकेट, तो यहाँ पे अगर लगा रही थी तो शी वॉज स्पेकुलेटिंग ऑन क्रिकेट, अगर नहीं लगा रही थी तो शी वॉज के साथ आप क्या यूज करोगे, नॉट का यूज करोगे। उसके बाद है रहीम was not agitating for social change. So dear friend, let me tell you the meaning of agitating for social change. The mean of agitating for social change is कि आंदोलन करना, सामाजिक बदलाव के लिए आंदोलन करना, यानी सोसाइटी को बदलने के लिए एक आंदोलन करना, विद्रोह करना, ताकि सोसाइटी के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल किया जाए। तो जो रहीम था वो एजिटेट नहीं कर रहा था, आंदोलन नहीं कर रहा था समाज के बदलाव के लिए। रहीम वॉज नॉट एजिटेटिंग फॉर सोशल चेंज। तो इस तरीके से आपको नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करना है। उसके बाद बात अगर आती है यहाँ पे किसकी, अगर बात हम करें यहाँ पे नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। देखो यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ये एफर्मेटिव का ये यहाँ पे जो मैंने ऊपर लिखा है, एफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद आप वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब का यूज़ करते हैं, उसके साथ आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन जब भी आपको इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करें वॉज और वर्ब, उनको आप सबसे पहले लिखें। तो वॉज वर्ब को आपने पहले लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करें, जो सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट को आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, इंटरोगेटिव मींस आस्किंग क्वेश्चन। व्हेन वी आस्क क्वेश्चन टू समबडी वी हैव टू यूज द साइन देयर, एंड हम इस तरीके से यहाँ पे इस रूल को अप्लाई करना पड़ता है। तो वॉज वर्ब को आप सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। एफर्मेटिव के अंदर आप क्या देख रहे हैं, एफर्मेटिव के अंदर आप सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को लिख रहे हो, एक्सिलरी को लिख रहे हो। लेकिन जब आपको यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करना है, बनाना है, तो आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, उसके बाद उन हेल्पिंग वर्ब के मुताबिक आप सब्जेक्ट को लिखेंगे और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखेंगे। अगर आपको कोई पूछे कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्यों लिख रहे हैं, कि वो कंटिन्यूस काम को यहाँ पे शो करती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद आपके पास साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि ये कंफ्यूजन भी आपकी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। वर वी मिल्किंग द काउ, क्या हम गाय से दूध निकाल रहे थे क्या, क्या हम गाय के दूध निकाल रहे थे क्या, हम गाय से दूध। वर वी मिल्किंग द काउ, तो यहाँ पे वी की बात है, तो वी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वी प्लूरल है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वी की बात हो रही है। तो वी इज व्हाट हियर, वी इज जस्ट एक्टिंग एज ए प्लूरल हियर, इट्स ए प्लूरल सब्जेक्ट। इस तरीके से आप बात करेंगे। उसके बाद सेकंड एग्जांपल की बात करें, वॉज शी स्पेकुलेटिंग ऑन क्रिकेट, क्या हमने देखा था कि शी वॉज नॉट स्पेकुलेटिंग ऑन क्रिकेट, शी वॉज नॉट स्पेकुलेटिंग ऑन क्रिकेट, बट यू डोंट हैव ट्रस्ट, यू थिंक लाइक दैट डेफिनेटली सर शी वॉज स्पेकुलेटिंग ऑन क्रिकेट, बट आई हैव क्वेश्चन टू आस्क यू, वॉज शी स्पेकुलेटिंग ऑन क्रिकेट, क्या वह लड़की क्रिकेट पर सट्टा लगा रही थी। आप बोलोगे डेफिनेटली शी वाज स्पेकुलेटिंग ऑन क्रिकेट। अगर नेगेटिव बनाना तो इसके साथ क्या यूज करोगे, शी वाज नॉट स्पेकुलेटिंग ऑन क्रिकेट। उसके बाद रहीम वॉज एजिटेटिंग फॉर सोशल चेंज। देखो यहाँ पे मैंने सीधा लिखा और उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे नीचे लिखा भी है कि आपको इसको कन्वर्ट इट इनटू इंटरोगेटिव। तो आपका इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, तो ये आपको मैंने बताया, इस रूल के मुताबिक आप इसको बना सकते हैं। वॉज को रहीम से पहले लिखे, वॉज रहीम एजिटेटिंग फॉर सोशल चेंज। तो इसके बाद आप इसके साथ क्या लगाएंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और आप अपनी इसी रिक्वायरमेंट को किस तरीके से इस रूल को सेटिस्फाई करोगे।
उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपकी कंफ्यूजन और अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए। एफर्मेटिव के अंदर है ही वॉज बास्किंग इन द सनशाइन। बास्क इन द सनशाइन का मतलब होता धूप सेकना, और आप सभी और हम सभी ठंड के टाइम पे क्या सेकते हैं, धूप सेकते हैं, ताकि हम अपनी बॉडी को विटामिन डी के साथ साथ अच्छी वहाँ पे एक क्या दे पाएँ, हीट भी दे पाएँ। तो एफर्मेटिव यहाँ पे ही वॉज बास्किंग इन द सनशाइन। तो देख रहे हैं आप रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। नेगेटिव बनाना तो ही वॉज नॉट बास्किंग इन द सनशाइन। इंटरोगेटिव बनाना आपको, तो आपको क्या यूज़ करना है, वॉज ही बास्किंग इन द सनशाइन। तो इस तरीके से आप इसका अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। तो देखो इंटरोगेटिव का रूल ही होता है, और इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव सेंटेंस, यानी क्वेश्चन तो है ही है लेकिन वो भी कैसा है, नकारात्मक है, यानी एक नेगेटिव क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बोलना है। तो देखो यहाँ पे इसका रूल बताता है कि वॉज और वर्क के बाद आप सब्जेक्ट का यूज़ करते हो, उसी तरीके से सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट का यूज़ करते हो। यानी जो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बस यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आप उसमें नॉट का एडिशन कर देना, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म और सेम ऑब्जेक्ट का यूज करना, और साइन क्वेश्चन मार्क का भी आपको सेम ही लगाना है। उसके बाद अगर शॉर्ट फॉर्म देखें तो यहाँ पे अगर कंट्रैक्शन फॉर्म में देखें तो वॉज के साथ नॉट लगने से वॉजेंट बन जाता है, तो ये सब्जेक्ट से पहले लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे ओपन में लिख रहे हैं, इन्हें अलग अलग लिख रहे हैं, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट। लेकिन अगर आप यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट से पहले भी आप नॉट का यूज, लेकिन कैसे, वॉज नॉट और वर नॉट, यानी ये इकट्ठा लिखेंगे, वॉजेंट और वरेंट से ही तभी होगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ यानी रिटर्न के पर्सपेक्टिव से जो ये सेकंड रूल मैं आपको बता रहा हूं, ये रॉन्ग होता है, ये एक सही रूल नहीं होता है। डिफरेंट कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमारी ये वाली कंफ्यूजन भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो कुछ एग्जांपल्स आपके लिए मैंने यहाँ पे लाई हैं। तो देखो ही वॉज गोइंग टू मार्केट, वो कहाँ जा रहा था, मार्केट जा रहा था। अब देखो यहाँ पे इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है, तो आप डेफिनेटली बना लेंगे। पहले ही मैंने आपको रूल भी बता दिया किस तरीके से आप बनाना। वॉज ही नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या वो लड़का मार्केट नहीं जा रहा था। Wasn't he going to market, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, दे वर प्लेइंग चेस, वे लोग क्या खेल रहे थे, शतरंज, चेस खेल रहे थे। अगर आपको इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आप रूल को अप्लाई करें ना, वर दे नॉट प्लेइंग चेस, क्या वे लोग चेस नहीं खेल रहे थे। आप बोलो यस सर वे लोग खेल रहे थे, यस डेफिनेटली दे वर प्लेइंग चेस। मैं बोलूँ नहीं वो लोग नहीं खेल रहे, तो आप बोलो क्या वो लोग चेस नहीं खेल रहे थे क्या। तो यहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म वरंट का यूज करके भी बता सकते हैं, लेकिन इट इज ओनली यूजफुल एंड हेल्पफुल फॉर स्पोकन, नॉट फॉर रिटन। सो आप यहां पे क्या बोलोगे, वरंट दे प्लेइंग चेस। इस तरीके से आप अपनी बात को यहां तक फिनिश करोगे। डियर फ्रेंड, अगर आप एक सिंपल ग्रामर की बात करें तो यहीं तक आपका जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है फिनिश होता है। लेकिन एग्जाम के अंदर किस तरीके से कंफ्यूजन पैदा की जाती है, नहीं किस तरीके से वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर देखने वाले हैं। और आप सभी डेफिनेटली अच्छे तरीके से इसको देखें और अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करें। और मैं आपको डेफिनेटली पीडीएफ भी शेयर करूंगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, ताकि आप अच्छे तरीके से नोट्स से भी बेनिफिट ले पाएं। तो देखो यहाँ पे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है ये हमेशा किसको बताता है, ऐसे काम को बताता है जो कब होते हैं, यानी ये जो पास्ट में जो काम हुए उनको बताता है। देखो यहाँ पे एक दूसरी भी बात मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि देखो ऐसे भी ऐसी कंडीशन को भी बताता है, और ऐसी कंडीशन के लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। यानी जब कोई दूसरी यहाँ पे क्यों घटना होती है, यानी जब कोई दूसरा इंसिडेंट यहाँ पे हो रहा हो, उसके साथ साथ कोई दूसरा काम जारी हो, उसको बताने के लिए भी आप इसका यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लाई है, आई वॉज प्रिपेयरिंग, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आई वॉज प्रिपेयरिंग डिनर। तो यहाँ पे जो एक काम तो हो रहा है कि आई वॉज प्रिपेयरिंग डिनर when she arrived। देखो यहाँ पे कितने तरीके से, when she arrived I was preparing dinner, ऐसे भी कह सकते थे। when he arrived his wife was washing her clothes। तो देखो यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यहाँ पे यूज हो रहा है। देखो इसी को मैंने एक सही सिंपल सी ट्रिक में आपको बताया, जब भी ऐसा कहीं हो तो सबसे पहला पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को लिखे, उसके बाद when लिखे, और when की जगह पे आप while का भी यूज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद आप पास्ट सिंपल टेंस का यूज करें। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल को देखें, पहली एग्जाम्पल को देखें तो आई वॉज प्रिपेयरिंग डिनर, उसके बाद व्हेन शी अराइव्ड का मतलब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बता रहा। इस तरीके से आप इस रूल को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। या फिर इस व्हेन को आप पहले भी लिख सकते हैं, तो आप ऐसे भी कह सकते थे, आप ऐसे भी व्हेन ही अराइव्ड हिज वाइफ वाज वॉशिंग हर क्लोथ्स। तो इस तरीके से ये दो रूल आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, इस तरीके से इनका आप यूज कर सकते हो।
और दूसरे रूल को देखो यहाँ पे जहाँ पे मैंने व्हेन का यूज़ किया वहाँ पे आप वाइल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वाइल का यूज़ करें तो उससे पहले आप क्या यूज़ करेंगे, इससे पहले आप यहाँ पे कंडीशनल फॉर्म यूज़ होती है। उसके बाद यहाँ पे इट कैन शेड लाइट ऑन व्हाट वाज हैपनिंग एट द प्रिसाइज टाइम इन द पास्ट, यानी ये उस टाइम के बारे में बताती है जो वहाँ पे एक वही पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में डिस्कस हुई। जैसे यहाँ पे मैंने बता रहा हूँ एट 6 o'clock आई वॉज टेकिंग या आई वॉज ईटिंग डिनर। देखो हैव, टेक और ईट तीनों वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं खाने के लिए। तो एट 6 o'clock यानी 6 बजे शाम की, आई वॉज टेकिंग या ईटिंग डिनर, मैं यहाँ पे क्या ले रहा था, शाम का खाना खा रहा था या खा रही थी। तो इस तरीके से यानी पॉइंट ऑफ टाइम यानी प्रिसाइज टाइम इन द पास्ट, किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें पास्ट के अंदर तो वो उस तरीके से बता सकते हैं। जैसे इन मॉर्निंग शी वॉज मॉपिंग द फ्लोर, यानी सुबह वो क्या कर रहा था या सुबह वो क्या कर रही थी, इन मॉर्निंग शी वॉज मॉपिंग द फ्लोर यानी वो फर्श पे पोछा लगा रही थी। मॉप द फ्लोर का मतलब होता पोछा लगाना। तो इस तरीके से भी आप इन बातों को अच्छे तरीके से कह सकते हो। उसके बाद यहाँ पे और अगर अच्छे रूल की बात करें तो और भी बहुत अच्छे रूल हैं जो आप सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये हमेशा जो पास्ट की हमारी हैबिट्स होती हैं, इन ऐसी आदत जिनको हम फ्रिक्वेंटली करते रहते हैं उनके लिए भी इसका यूज़ होता है। और उनके अंदर भी कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे ऑलवेज होता है, कंटिन्यूअली होता है, कॉन्स्टेंटली होता है। ये ऐसे एडवर्ब्स भी हम इन सेंटेंसेस के अंदर क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है दे वर कंटिन्यूअली थ्रेटनिंग अस, यानी थ्रेटनिंग अस, वो लगातार हमें क्या कर रहे हैं, धमका रहे हैं। दे वर कंटिन्यूअली थ्रेटनिंग अस, तो वो कंटिन्यूअली हमें क्या कर रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं। शी वॉज ऑलवेज पिकिंग फाइट विद अदर्स, वो हमेशा क्या करती रहती थी, दूसरों के साथ पंगे लेती रहती थी। पिक फाइट विद अदर्स का मतलब होता दूसरों के साथ पंगे लेना। उसके बाद है ही वॉज कॉन्स्टेंटली क्राइंग दोज डेज, यानी वो क्या कर रही थी उन दिनों पे, यानी पास्ट की बात हो रही। दोज डेज यहाँ पे पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, वो क्या कर रही थी, लगातार रो रही थी। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका यूज़ होता है। उसके बाद और यहाँ पे चौथे रूल की बात करें तो ये रूल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के जानने के लिए। तो ये इस तरीके से बताता है कि जब भी दो एक्शन यानी परफॉर्म हो रही है, एक साथ परफॉर्म हो रही है और यहाँ पे एक कंडीशन है तो उस टाइम पे आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, यानी एक साथ जब भी दो काम हो रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। उस कंडीशन में क्या, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे व्हेन शी वाज कुकिंग आई वाज वॉशिंग द क्लॉथ्स। देखो यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, व्हेन शी वाज कुकिंग आई वाज वॉशिंग द क्लॉथ, या यहाँ पे आप वाइल का भी यूज़ कर रह सकते हो। वाइल शी वाज कुकिंग आई वाज वॉशिंग द क्लॉथ्स, जबकि वो क्या कर रही थी, खाना बना रही थी और मैं क्या कर रहा था, कपड़े धो रहा था। वाइल आई वाज सिंगिंग राकेश वाज रीडिंग, वाइल पंकज वॉज शाउटिंग सीता वॉज राइटिंग। तो इस तरीके से भी आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। आई होप डियर फ्रेंड आपको ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इनके भी आपको अच्छे तरीके से पता चला होगा। इफ़ यू हैव गॉट दिस टॉपिक दिस लेक्चर वेरी परफेक्टली एंड इफ़ यू हैव वॉच दिस वीडियो दिस लेक्चर वेरी कंसाइजली विद हैविंग फुल अटेंशन टूवर्ड्स दिस लेक्चर, सो प्लीज़ I have brought one exercise for you. I hope you will give answer definitely. तो ये आप सभी के लिए एक्सरसाइज है, आप सभी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है और उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन के अंदर इसके आंसर बताना है, या आप फिर यहाँ पे अपने नोटबुक के ऊपर लिखकर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हो। एंड डियर फ्रेंड अगर आपको सही तरीके से और अच्छे तरीके से छोटे छोटे लेक्चर्स भी चाहिए तो यू कैन फॉलो मी ऑन ब्राइट आविष्कार। देखो ब्राइट आविष्कार भी है। इफ़ यू थिंक लाइक दैट कि हमें छोटे छोटे जैसे सबऑर्डिनेट क्लास था क्या होता है, तो उसके ऊपर आपके पास 200 से 300 वीडियोज़ अपलोड हैं, तो उन वीडियोज़ को आप अच्छे से डाउट क्लियर कर सकते हो। अदरवाइज इट वॉज रियली बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म फॉर यू ऑल डियर फ्रेंड्स। Triple S is not a single platform. I can say that it's just like a multinational company where you are getting many things to learn, and I hope you all are taking the advantages from the Triple S and you are making your lockdown productive, and definitely you are preparing by leaps and bounds for your competitive exam, so that definitely in one chance you can crack this exam. So wishing you once again happy learning dear friends. On today onwards I will definitely be giving you the lectures and you will get every day one lecture for learning, and definitely we shall cover definitely our syllabus within time. So thank you for today, and I hope you will show same love and cooperation in upcoming lectures also. And dear friends, if you haven't subscribed the Triple S channel yet, please subscribe and don't forget to press the bell icon so that you can get notification of upcoming lectures also. So thank you very much. Stay blessed, stay safe and stay home. Thank you very much.